اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان نحو حصہ اول پہلا سبق۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ یعنی علم نحو سے ہمیں کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دو کلمات اگر ہمارے پاس ہو، ایک کلمہ ایک اور دوسرا، ان کو جوڑنا کیسے ہے عربی زبان میں؟ اس کا طریقہ ہمیں علم نحو بتاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس دو کلمات ہے، ایک ہے ان، ایک ہے اللہ۔ تو جب ہم ان کو جوڑیں گے تو ان اللہ، اور آخری حرف کا اعراب کیا ہوگا؟ ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ۔ تو یہ جو اعراب ہے آخری حرف کی، آخری حرف کے حرکات جو ہیں وہ بھی معلوم ہوتے ہیں اور جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی علم نحو کی تعریف ہے۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہوتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے اس علم کا؟ اس علم کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ یعنی غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اور کس قسم کی غلطی؟ دو غلطیاں، ایک عربی زبان بولنے میں غلطی اور لکھنے میں غلطی سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہوگی علم نحو کی تعریف اور علم نحو کا فائدہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کیا ہوتا ہے۔ لفظ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اسے لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے منہ سے جو بات بھی نکلے، اس ہر ایک بات کو ہم لفظ بولتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو بات آدمی کے منہ سے نکلے جس کو ہم لفظ بولتے ہیں، یہ لفظ اگر معنی دار ہو، یعنی اس بات کا کوئی معنی ہو، تو اسے ہم لفظ موضوع بولتے ہیں۔ معنی دار لفظ جیسے قلم، اس کا ایک معنی ہے عربی زبان میں قلم، یعنی ایک قلم۔ اور اگر یہ لفظ یعنی جو بات منہ سے نکلے یہ بے معنی ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیز، یا دیز یعنی زید جو ایک کسی شخص کا، کسی آدمی کا، کسی لڑکے کا نام ہے، اس کا الٹا زید کا الٹا دیز۔ زید کا تو معنی ہے لیکن اس کا الٹا جو ہے دیز، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو یہ ہے لفظ محمل۔ بے معنی لفظ کو لفظ محمل کہتے ہیں، با معنی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اور لفظ کیا خود کیا ہوتا ہے؟ جو بات آدمی کے منہ سے نکلے اسے لفظ بولتے ہیں۔ اب یہ آگے دیکھتے ہیں، یہ جو لفظ موضوع ہے یعنی معنی دار لفظ ہے، یہ لفظ موضوع جس کا معنی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مفرد، ایک مرکب۔ تو صاحب کتاب یہی فرما رہے ہیں کہ
लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब हम मुफरद को पहले देखते हैं। मुफरद वो अकेला लफ्ज है, मुफरद यानी फर्द से, एक अकेला है ये। वो एक अकेला लफ्ज है जो एक माना बताए, जैसे कलम, वो अकेला लफ्ज है जो एक माना बताए, उसे मुफरद बोलते हैं। वो अकेला लफ्ज है जो एक माना बताए, मुफरद, जैसे कलम। मुफरद को कलिमा भी कहते हैं, मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है, और कलिमा की 3 किस्में हैं। इसी कलिमा की अब 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। और अगर हम फिर से देखें तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जो बात भी आदमी के मुंह से निकले, इंसान के मुंह से निकले, उसे लफ्ज बोलते हैं। लफ्ज अगर मानादार हो तो उसे लफ्ज मौजू बोलते हैं, और लफ्ज अगर बेमाना हो तो उसे लफ्ज मुहम्मल बोलते हैं। लफ्ज मौजू की 2 किस्में हैं, पहली किस्म मुफरद और दूसरी मुरक्कब। मुरक्कब हम आगे वाले असबाक में पढ़ेंगे। अभी हम मुफरद जो है, मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है। मुफरद को कलिमा भी कहते हैं, और कलिमा की आगे चलकर 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म, फ़िअल और हर्फ। अब हम ये इस्म, फ़िअल और हर्फ की तारीफ पढ़ते हैं पहले। इस्म वो कलिमा है, यानी ये कलिमा है। दूसरा नाम मुफरद है ये, क्योंकि कलिमा मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। वो मुफरद है या वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ जाए। इसके जो माना है वो दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ जाएंगे, और इसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना न पाया जाए, जैसे कलमुन, किताबुन। फ़िअल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और इसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए, जैसे कतबा, लिखा उसने गुज़श्ता ज़माना में। यक्तुबु, लिखता है वो फिलहाल, या लिखेगा वो आइंदा ज़माने में। यानी एक ज़माना, हाल, आइंदा ज़माना और गुज़श्ता ज़माना, 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना इसमें पाया जाता है। इस्म, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। और हर्फ वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में न आए, जैसे मिन, फी, इला, अला। जब तक इन हरफों के साथ कोई इस्म या फ़ेल न मिलाया जाए, कुछ फ़ायदा हासिल न होगा। यानी अब अगर हम समझने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे, और एक साइड से हम इसमें लिखेंगे ऐसे, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ऐसे इस्म, फ़ेल और हर्फ। और फिर लिखेंगे पहला ऐसे, कि वो कलिमा है कि माना जिसके माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ जाए। दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर माना समझ में आ जाए, और ये है, ये 3 ज़मानों
में एक ज़माना। तो इसम दूसरे कलिमा को, इसका माना दूसरे कलिमा को मिलाए बगैर समझ में आ जाता है तो यस। 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना, नो। फ़ेल दूसरा कलिमा को मिलाए बगैर माना समझ में आ जाता है, यस। 3 ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाता है, यस। यानी दोनों में टिक है। हर्फ दूसरा कलिमा को मिलाए बगैर माना समझ में आता है, नहीं। 3 ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाता है, नहीं। इसकी डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें ये जो कलिमा है यानी मुफरद है उसकी 3 अक़साम जो है, 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, इनकी तारीफ हमने समझ ली। और यही हम आगे जाके इस डायग्राम में, इस चार्ट में देख रहे हैं कि जो लफ्ज़ है, जो बात आदमी के, इंसान के मुंह से निकले उसे लफ्ज़ बोलते हैं, अटरेंस बोलते हैं। और लफ्ज़ अगर मानादार हो तो मौजू है, अगर बेमाना है तो मुहम्मल है। और मौजू जो है इसकी 2 किस्में हैं, एक मुफरद सिंगल, एक मुरक्कब कंपाउंड। और जो सिंगल है, मुफरद है, मुफरद का और एक नाम क्या है, कलिमा। और इसकी 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और इस्म क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, इन तीनों की तारीफ हमने अभी देखी। तो ये चार्ट जो है इससे हमें लफ्ज़ से लेके मुफरद की 3 अक़साम तक समझ में आ गई और इनकी तारीफ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।